Good morning, students. Welcome to computer classes video session. Now in this session we'll talk about Visual Basic. Visual Basic is a programming system created by Microsoft. Visual Basic Microsoft द्वारा बनाया गया एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है. The basic aim of creating the system was to give a user-friendly environment that support graphical user interface. इस सिस्टम को क्रिएट करने का मूल उद्देश्य एक यूजर को यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना था जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता हो. It is derived from an earlier language BASIC, which means beginners all-purpose symbolic instructions code. यह एक पहले की भाषा बेसिक से लिया गया है जिसका अर्थ है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शंस कोड. बेसिक इज अ सिंपल लैंग्वेज with simple programming constructs and is used to text-based environment. It supports character user interface. बेसिक सरल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्शंस के साथ एक सरल भाषा है और इसका उपयोग टेक्स्ट आधारित इन्वायरमेंट में किया जाता है, अर्थात यह कैरेक्टर यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है. Visual Basic was one of the first systems that made it practical for writing program for the Windows operating system. Visual Basic फर्स्ट सिस्टम में से एक थी जिसने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम लिखने और इसे प्रैक्टिकली बनाया. These software tools not only create Windows program but also take full advantages of its graphical user interface by letting programmers draw their system with a mouse on the computer. This is why it is called Visual Basic. ये सॉफ्टवेयर टूल न केवल विंडोज प्रोग्राम बनाते हैं बल्कि प्रोग्रामर को कंप्यूटर पर माउस के साथ अपने सिस्टम को अट्रैक्ट करने से लेकर इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पूरा बेनिफिट उठाते हैं. इसी कारण इसे विजुअल बेसिक कहा जाता है. विजुअल बेसिक इज एन इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Event-driven programming is a way of programming in which the flow of the program is determined by an event. Event-driven programming का एक तरीका है जिसे प्रोग्राम का फ्लो एक इवेंट द्वारा डिटरमाइन किया जाता है. An event is an action performed either by using the mouse click, double click, etc. or by pressing keys on the keyboard. इवेंट एक क्रिया है जिसे माउस क्लिक, डबल क्लिक आदि का उपयोग करके या कीबोर्ड पर कीज को प्रेस करके किया जाता है. विजुअल बेसिक इज एन इवेंट ड्रिवन लैंग्वेज. द प्रोग्राम दैट यू क्रिएट इन इट आर बेस्ड on the event programmed by the user on different object create in a form. विजुअल बेसिक एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अर्थात आप इसमें जो प्रोग्राम बनाते हैं वे एक फॉर्म में बनाई गई विभिन्न वस्तुओं पर यूजर्स द्वारा किए गए इवेंट पर आधारित होते हैं. विजुअल बेसिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. Integrated Development Environment (IDE) is a term commonly used in the programming world to describe the interface and the environment that you use to create your own applications. Integrated Development Environment (IDE) आमतौर पर प्रोग्रामिंग की दुनिया में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जिसका उपयोग इंटरफेस और एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जिसे आप अपने स्वयं के एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं. It is called integrated because it has many features like designing, editing, compiling and debugging within the common environment. इस इंटीग्रेटेड
इसे इंटीग्रेटेड कहा जाता है क्योंकि इसमें कई विशेषताएं हैं, जैसे कि कॉमन एनवायरनमेंट में डिजाइनिंग, एडिटिंग, कंपाइलिंग एंड डिबगिंग। Visual Basic IDE is made up of the following components like menu bar, toolbar, toolbox, project explorer, property window, form design window, form layout window, code window. You will learn about these later in this chapter. आप इस अध्याय में बाद में इनके बारे में जानेंगे। Usage of Visual Basic. With Visual Basic you can create, Visual Basic के उपयोग से आप बना सकते हैं an educational program for teaching any module for school और कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स। स्कूल या कॉलेज स्तर के छात्रों के लिए किसी भी मॉड्यूल को पढ़ाने के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम बना सकते हैं। For business, it can create business programs such as inventory management system, payroll system, financial program as well as accounting programs to help manage business and increase productivity. बिजनेस के लिए यह बिजनेस प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम, फाइनेंशियल प्रोग्राम के साथ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करने के लिए अकाउंटिंग प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। प्रोग्राम्स फॉर प्रोग्रामर्स हु क्रिएट गेम्स, यह गेम बनाने वाले प्रोग्रामर्स के लिए प्रोग्राम बना सकता है। स्टार्टिंग विजुअल बेसिक, द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड टू ओपन द विजुअल बेसिक स्क्रीन। विजुअल बेसिक स्क्रीन ओपन करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन किया जाता है। स्टेप 1, क्लिक स्टार्ट मेन्यू, प्रोग्राम ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6.0 फोल्डर, Microsoft Visual Basic 6.0. Then the Visual Basic window appears. Visual Basic window shows a startup window known as New Project window. Visual Basic window दिखाई देती है। Visual Basic window एक स्टार्टअप विंडो दिखाती है जिसे न्यू प्रोजेक्ट विंडो के रूप में जाना जाता है। Note: A project in Visual Basic is a collection of different objects like forms. Visual Basic में एक प्रोजेक्ट विभिन्न ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है, जैसे कि फॉर्म। इट इज another name of an application, यह एक एप्लीकेशन का दूसरा नाम है। A project is saved with an extension of .vbp, एक प्रोजेक्ट .vbp एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। द न्यू प्रोजेक्ट विंडो हैज 3 टैब्स, दीज आर गिवन बिलो। नई प्रोजेक्ट विंडो में 3 टैब हैं, ये नीचे दिए गए हैं। न्यू, दिस इज द डिफॉल्ट टैब विद स्टैंडर्ड exe ऑप्शन सेलेक्टेड। इट हेल्प्स यू टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। यह exe विकल्प के साथ डिफॉल्ट टैब है, यह आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग, दिस टैब डिस्प्ले द लिस्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट क्रिएटेड अर्लियर एंड स्टोर्ड इन द सिस्टम। इस टैब में पहले और स्टोर किए गए प्रोजेक्ट की लिस्ट डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट इज recent, this tab display the list of the most recently created project। यह टैब सबसे हाल ही में बनाए गए प्रोजेक्ट की लिस्ट डिस्प्ले करता है। स्टेप 2, select the new option and click the option button। न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करें और ओपन बटन पर क्लिक करें। द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE ऑफ विजुअल बेसिक अपीयर्स। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE ऑफ विजुअल बेसिक दिखाई देगा।
लेट अस स्टडी कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक विंडोज इन डिटेल। आइए हम विजुअल बेसिक विंडो के कंपोनेंट्स का विस्तार से अध्ययन करें। टाइटल बार। द टाइटल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द मोड यू आर करेंटली व्यूइंग। टाइटल बार पर आपके द्वारा वर्तमान में देखे जा रहे मोड के साथ प्रोजेक्ट का नाम डिस्प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द गिवन फिगर द नेम द प्रोजेक्ट 1 एंड दिस इज इन द डिजाइन मोड। एग्जाम्पल के लिए दिए गए फिगर में प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 1 है और यह डिजाइन मोड में है। नोट: the default name of the project in Visual Basic project 1, 2, 3 and so on। विजुअल बेसिक में प्रोजेक्ट का डिफॉल्ट नाम प्रोजेक्ट 1, 2, 3 और आगे भी इस तरह से हो सकते हैं। मेनू बार। द मेनू बार इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द टाइटल बार। इट कंटेन्स डिफरेंट मेन्यूज लाइक फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। मेनू बार टाइटल बार के ठीक नीचे मौजूद है। इसमें फाइल, एडिट, व्यूज, प्रोजेक्ट आदि जैसे विभिन्न मेनू शामिल हैं। टूल बार। टूल बार कंटेन्स टूल एज ए क्विक एक्सेस फॉर डिफरेंट ऑप्शंस प्रेजेंट इन द मेनूज ऑफ द मेनू बार। टूल बार में मेनू बार के मेनू में मौजूद विभिन्न विकल्पों के लिए क्विक एक्सेस के रूप में टूल शामिल हैं। Next is toolbox. The toolbox contains a set of controls that are used to place on a form while designing it, thereby creating the user interface area. Toolbox में कंट्रोल्स का एक सेट होता है जिसका उपयोग यूजर इंटरफेस एरिया बनाकर इसे डिजाइन करते समय एक फॉर्म पर रखने के लिए किया जाता है। The various tools from the toolbox are explained here। टूलबॉक्स से विभिन्न उपकरण टूल्स यहाँ बताए गए हैं। पॉइंटर। इट हेल्प्स इन रिसाइजिंग एंड मूविंग एन ऑब्जेक्ट। यह किसी ऑब्जेक्ट को आकार देने और स्थानांतरित मूव करने में हेल्प करता है। पिक्चर बॉक्स। इट डिस्प्ले आइकन्स, बिटमैप फाइल्स, नोट इट डिस्प्ले टेक्स्ट और एक्ट्स एज विजुअल कंटेनर फॉर अदर कंट्रोल्स। यह आइकन बिटमैप फाइल डिस्प्ले करता है। नोट यह टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है या अन्य कंट्रोल्स के लिए विजुअल कंटेनर के रूप में कार्य करता है। Next is label. It displays a text that the user cannot modify or interact with। यह एक टेक्स्ट डिस्प्ले करता है जिसे यूजर्स मॉडिफाई नहीं कर सकता है या इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बॉक्स। इट क्रिएट्स ए टेक्स्ट बॉक्स टू डिस्प्ले मैसेज और एक्सेप्ट डेटा। यह मैसेज डिस्प्ले करने या डेटा एक्सेप्ट करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता है। Next is frame. It contains other controls tools with act and control as group। इसमें अन्य कंट्रोल्स टूल्स शामिल हैं जो ग्रुप के रूप में कार्य करते हैं और कंट्रोल करते हैं। कमांड बटन। It is used to carry out the specified action when the user chooses it। इसका यूज यूजर द्वारा चूज किए जाने पर स्पेसिफाइड एक्शन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज चेक बॉक्स। इट डिस्प्ले ट्रू, फॉल्स और यस नो ऑप्शन। यह एक ट्रू और फॉल्स, यस या नो ऑप्शंस को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट इज ऑप्शन बटन। इट क्रिएट्स रेडियो बटन्स so the user can select only one option from the given multiple options।
यह रेडियो बटन बनाता है ताकि यूजर्स दिए गए कई विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कर सके। नेक्स्ट इज कॉम्बो बॉक्स। It provides a drop-down list and allow the user to select an item from it. यह एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रोवाइड करता है और यूजर्स को इससे एक आइटम सेलेक्ट करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट इज लिस्ट बॉक्स। इट डिस्प्ले ए लिस्ट ऑफ आइटम्स फ्रॉम विच अ यूजर कैन सेलेक्ट वन। यह उन आइटम्स की एक लिस्ट डिस्प्ले करता है जिनसे यूजर एक का चयन कर सकता है। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इट अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट ए वैल्यू विद इन द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। यह यूजर्स को मूल्यों की स्पेसिफाइड रेंज के भीतर एक मूल्य का एक वैल्यू का चयन करने की परमिशन देता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार। It allows the user to select a value within the specified range of values. यह यूजर्स को वैल्यूज की स्पेसिफाइड रेंज के भीतर एक वैल्यू का चयन करने की परमिशन देता है। नेक्स्ट इज टाइमर। It executes the timer event at a specified interval of time. यह समय के स्पेसिफाइड इंटरवल पर टाइमर इवेंट को एग्जीक्यूट्स करता है। नेक्स्ट इज ड्राइव लिस्ट बॉक्स। इट डिस्प्लेज वैलिड डिस्क ड्राइव्स एंड अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। यह वैलिड डिस्क ड्राइव डिस्प्ले करता है और यूजर्स को उनमें से एक का चयन करने की परमिशन देता है। dir list box. It allows the user to select the directories and paths which are displayed. यह यूजर को उन डायरेक्टरीज और पाथ्स का चयन करने की परमिशन देता है जो डिस्प्ले होते हैं। नेक्स्ट इज टेक्स्ट बॉक्स। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज एंड एंटर टेक्स्ट। इसका उपयोग मैसेज डिस्प्ले करने और टेक्स्ट एंटर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज शेप। इट इज यूज्ड टू ऐड शेप टू ए फॉर्म। इसका यूज शेप को एक फॉर्म में ऐड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज लाइन। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन इन अ फॉर्म। इसका यूज एक रूप में सीधी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। Next is image. It is used to display image and icons, bitmap, etc. इसका यूज इमेज को आइकन, बिटमैप आदि के रूप में डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज डेटा। It enables the user to connect to an existing database and display information from it. यह यूजर को किसी मौजूदा डेटाबेस को कनेक्ट करने और उससे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने में सक्षम बनाता है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो। द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो प्रोजेक्ट के सभी रूपों की एक लिस्ट डिस्प्ले करता है। दिस इज प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। यह स्क्रीन के दाईं ओर मौजूद है। द प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो गिव्स यू अ ट्री स्ट्रक्चर्ड व्यू ऑफ ऑल द फाइल्स inserted into application. You can expand these and collapse branches of the views. प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो आपको एक ट्री एप्लीकेशन में डाली गई सभी फाइलों का स्ट्रक्ट व्यू देता है। आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। The various components of a project window are given below. प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो के विभिन्न कंपोनेंट्स नीचे दिए गए हैं। व्यू कोड।
इट इज यूज टू व्यू द कोडिंग ऑफ द सेलेक्टेड फॉर्म और अ प्रोजेक्ट। इसका यूज सेलेक्टेड फॉर्म या किसी प्रोजेक्ट की कोडिंग देखने के लिए किया जाता है। व्यू ऑब्जेक्ट, इट इज यूज टू व्यू द ऑब्जेक्ट यूज्ड इन ए स्पेसिफिक फॉर्म और अ प्रोजेक्ट। यह एक स्पेसिफिक फॉर्म या एक प्रोजेक्ट में यूज की जाने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। टॉगल फोल्डर, यूज्ड फॉर स्विचिंग बिटवीन वेरियस फोल्डर। विभिन्न फोल्डरों के बीच स्विच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रोजेक्ट नेम, डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम डिस्प्ले करता है। फॉर्म्स फोल्डर, इट कंप्राइज ऑल द फॉर्म्स फॉर द सेलेक्टेड प्रोजेक्ट। इसमें सेलेक्टेड प्रोजेक्ट के सभी फॉर्म शामिल हैं। फॉर्म मॉड्यूल, द फॉर्म्स डेवलप्ड आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द सेलेक्टेड प्रोजेक्ट नेम। सेलेक्टेड रूप में डेवलप या डेवलप किए जा रहे फॉर्म प्रोजेक्ट का नाम। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज विंडो। द प्रॉपर्टीज विंडो इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द राइट साइड ऑफ द विजुअल बेसिक विंडो। प्रॉपर्टीज विंडो भी विजुअल बेसिक विंडो के दाईं ओर मौजूद है। द प्रॉपर्टी विंडो डिस्प्ले द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट selected on the form. Each form in an application is also considered as an object. प्रॉपर्टीज विंडो फॉर्म पर सेलेक्टेड वस्तुओं के विभिन्न प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करता है। किसी एप्लीकेशन में प्रत्येक फॉर्म को एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी जाना जाता है। Thus, a form has properties and any control placed on it will have properties too. इस प्रकार एक फॉर्म में प्रॉपर्टीज होते हैं और उस पर रखे गए किसी भी कंट्रोल में प्रॉपर्टीज भी होंगे। All these properties are displayed in the properties window with the default values, but these values can be changed by the programmer. इन सभी प्रॉपर्टीज को डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ प्रॉपर्टीज विंडो में डिस्प्ले किया जाता है, लेकिन प्रोग्रामर द्वारा इन वैल्यूज को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है फॉर्म लेआउट विंडो। फॉर्म लेआउट विंडो डिटरमाइंस द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द फॉर्म रिलेटिव टू द स्क्रीन। फॉर्म लेआउट विंडो फॉर्म स्क्रीन के सापेक्ष फॉर्म की स्टार्टिंग पोजीशन निर्धारित करती है। ट्राई योर सेल्फ, place your mouse pointer on the form in the form layout window and drag it to the required position. अपने माउस पॉइंटर को फॉर्म लेआउट विंडो में फॉर्म पर रखें और इसे रिक्वायर्ड पोजीशन में ड्रैग करें। Now execute your form and see that the form is displayed at the position adjust in the form layout window. अब अपने फॉर्म को एग्जीक्यूट करें और देखें फॉर्म को फॉर्म लेआउट विंडो में एडजस्ट पोजीशन में डिस्प्ले किया गया है। नेक्स्ट इज फॉर्म डिजाइन विंडो। फॉर्म डिजाइन विंडो इज प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ग्रिड यूज्ड टू डिजाइन ए फॉर्म। फॉर्म डिजाइन विंडो को एक ग्रिड के रूप में रखा जाता है जिसका यूज फॉर्म के डिजाइन करने के लिए किया जाता है। अ फॉर्म in Visual Basic display various controls that provide the user interface. Visual Basic various controls को डिस्प्ले करता है जो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। Some of the controls are label, text box, command button, etc. कुछ कंट्रोल लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, कमांड बटन आदि हैं। A form is saved with an extension of .frm. फॉर्म को .frm एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ए फॉर्म कुड बी एन इंट्रोडक्शन स्क्रीन, अ डायलॉग बॉक्स गिवन द यूजर ऑप्शन, अ बॉक्स कंटेनिंग ए वार्निंग एक्सेट्रा। एक फॉर्म में एक इंट्रोडक्शन स्क्रीन, एक डायलॉग बॉक्स हो सकता है जिसमें यूजर्स ऑप्शन, वार्निंग आदि हो सकती है। All these forms can be designed in the form design window using the tools present in the toolbox.
इन सभी फॉर्म्स को टूल बॉक्स में मौजूद टूल का यूज करके फॉर्म डिजाइन विंडो में डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज कोड विंडो। The code window is used to event-driven programming for different object created on the form. कोड विंडो का उपयोग फॉर्म पर बनाई गई विभिन्न वस्तुओं के लिए इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। You may get the code window by either of the following method. आप निम्न विधियों में से किसी एक के द्वारा कोड विंडो प्राप्त कर सकते हैं। क्लिक ऑन व्यू मेनू, व्यू कोड ऑप्शन। व्यू मेनू पर क्लिक करें, व्यू कोड ऑप्शन। स्टेप 2, द कोड विंडो अपीयर्स। नोटिस द चेंज इन नेम ऑफ द फॉर्म इन द टाइटल बार। इट चेंज फॉर्म डिजाइन टू कोड। कोड विंडो दिखाई देती है, फॉर्म के नाम को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं टाइटल बार में। यह डिजाइन से कोड में बदलता है। स्टेप 3, you can also get the code window by double clicking anywhere on the form in the design mode. आप कोड विंडो को डबल भी प्राप्त कर सकते हैं, फॉर्म पर कहीं भी डिजाइन मोड में क्लिक करें। Try yourself. Start Visual Basic and select View menu. Explore the different options present in it. Visual Basic स्टार्ट करें और व्यू मेनू चुनें। इसमें मौजूद विभिन्न विकल्पों को एक्सप्लोर करें। नेम एंड एक्सप्लेन एट लीस्ट एनी 5 ऑप्शन प्रेजेंट इन द व्यू मेनू। क्लिक ऑन देम टू सी द इफेक्ट इन द विजुअल बेसिक आईडीई। व्यू मेनू में मौजूद कम से कम 5 विकल्पों को नाम दें और समझाएं। विजुअल बेसिक आईडीई में इफेक्ट देखने के लिए उन पर क्लिक करें। एग्जीक्यूटिंग विजुअल बेसिक प्रोग्राम। You need to execute the Visual Basic program to view the result of the design and coding. डिजाइन और कोडिंग के रिजल्ट को देखने के लिए आपको विजुअल बेसिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होगा। To do, you need to follow the steps given below. ऐसा करने के लिए आपको नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करने की आवश्यकता है। क्लिक ऑन रन मेनू, स्टार्ट ऑप्शन और क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। द आउटपुट विंडो अपीयर्स। इंसर्टिंग कंट्रोल्स इन विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। लेट अस सी हाउ एन एप्लीकेशन कैन बी क्रिएटेड इन विजुअल बेसिक। फॉलो दीज स्टेप्स टू इंसर्ट कंट्रोल्स इन द विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट। आइए देखते हैं कि कैसे एक एप्लीकेशन विजुअल बेसिक में बनाया जा सकता है। विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट में कंट्रोल्स इंसर्ट करने के लिए इन स्टेप्स का यूज करें। स्टेप 1, क्लिक स्टार्ट मेनू, विजुअल बेसिक 6.0 फोल्डर, विजुअल बेसिक 6.0 एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज इन द न्यू प्रोजेक्ट विंडो सेलेक्ट द स्टैंडर्ड EXE ऑप्शन। स्टेप 3, क्लिक ऑन क्रिएट बटन। अ न्यू window with the default name project 1 and with the default form 1 appears. Step 4, use the project present on the toolbox to design the controls on the form as shown here. यहाँ दिखाए गए टूल बॉक्स के अनुसार फॉर्म पर कंट्रोल्स को डिजाइन करने के लिए टूल बॉक्स पर मौजूद ऑब्जेक्ट को यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, क्लिक ऑन द लेबल टूल A present on the toolbox. The mouse pointer change to a plus sign. एग्जाम्पल के लिए लेवल टूल पर क्लिक करें। ए टूल बॉक्स पर मौजूद माउस पॉइंटर बदलकर प्लस साइन हो जाता है। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द फॉर्म एंड ड्रैग इट टू मेक ए प्लेस फॉर द लेबल। माउस पॉइंटर को फॉर्म पर रखें और इसे लेबल के लिए जगह बनाने के लिए ड्रैग करें। रिपीट द प्रोसेस फॉर डिजाइनिंग डिफरेंट कंट्रोल्स ऑन द फॉर्म। फॉर्म पर डिफरेंट कंट्रोल्स को डिजाइन करने के लिए प्रोसेस को रिपीट करें। स्टेप 5,
गो द प्रॉपर्टीज विंडोज एंड चेंज द प्रॉपर्टी एज गिवन बिलो। प्रॉपर्टी विंडो पर नीचे दी गई प्रॉपर्टीज को बदल दें। इसको कैसे चेंज करना है? कैप्शन ऑफ लेवल 1, कैप्शन ऑफ लेवल 1 को चेंज करके एंटर नेम करें। बी, कैप्शन ऑफ लेवल 2 एज एंटर क्लास, लेवल 2 के कैप्शन को एंटर क्लास में चेंज करें। कैप्शन ऑफ कमांड 1 एज डिस्प्ले हेलो, कमांड बटन के कैप्शन को डिस्प्ले हेलो में चेंज करें। डी, कैप्शन ऑफ कमांड 2 एज एग्जिट, टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट 1 एज ब्लैंक, टेक्स्ट 2 इसको भी ब्लैंक करें। टेक्स्ट बॉक्स, दोनों टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक छोड़ दें और कमांड बटन जो 2 है उसका कैप्शन चेंज कर दें एग्जिट। After doing the above changes, the form design window will appear as shown in the given figure। इस तरीके से ये फिगर में दिया गया है। नेक्स्ट इज स्टेप 6, टू execute the form, to see presentation of the form, click on start tool, present on the toolbar और click run menu start option। फॉर्म की प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, फॉर्म को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट टूल पर क्लिक करें जो कि टूल बार पर मौजूद है, या रन मेन्यू पर क्लिक करें। स्टेप 7, टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर्म, क्लिक ऑन स्टॉप टूल प्रेजेंट ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। फॉर्म के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए स्टॉप पर क्लिक करें जो कि स्टैंडर्ड टूल बार पर प्रेजेंट है, और क्लिक रन मेन्यू में जाके एंड ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। Saving a project and a form, you can save any project in Visual Basic by following the steps given here। आप यहाँ दिए गए स्टेप्स का पालन करके विजुअल बेसिक में किसी भी प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक फाइल मेन्यू, सेव प्रोजेक्ट एज ऑप्शन। स्टेप 2, सेव फाइल एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, एंटर द नेम ऑफ द फॉर्म, हियर क्लिक ऑन सेव बटन। फाइल सेव पर क्लिक करें, जैसे डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ फॉर्म का नाम एंटर करें और सेव बटन पर क्लिक करें। इस तरीके से। स्टेप 3, द सेव प्रोजेक्ट एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, एंटर द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, हियर क्लिक ऑन सेव बटन। सेव प्रोजेक्ट एज डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम एंटर करें और सेव बटन पर क्लिक करें। द न्यूली क्रिएटेड फॉर्म एंड प्रोजेक्ट विल बी सेव्ड विद द स्पेसिफाइड नेम। नए बनाए गए फॉर्म और प्रोजेक्ट को स्पेसिफाइड नेम के साथ सेव किया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू।